Hello students, I am Namita Pant, lecturer English from Government Girls Polytechnic, Dehradun. And once again, I am with you all to discuss a poem which is included in your syllabus, which is called Ode to a Nightingale. And it's composed by John Keats. John Keats iske kavi hain. Let's move forward and then we'll know who John Keats was, what an ode is and everything. Okay. So here's a portrait of John Keats. He was a very famous romantic poet. Romantic here doesn't mean the romantic in the context we know now. Romanticism was an era in English poetry, and Romanticism basically means a strong imagination. So he was a prominent poet of that era. Let's see. John Keats was an English poet prominent in the second generation of Romantic poets. See, Romantic poets, there were two generations of these Romantic poets. One were the beginning of this Romantic era, and others were the later poets. With Lord Byron and Percy Bysshe Shelley, although his poems had been in publication for less than 4 years when he died of tuberculosis at the age of 25. So, see, he died so young, as you can all see, that he died when he was only 25 years old. So that's a very young age. Now let's see. Let's go back a bit. He was born on 31st October 1795 at Moorgate, London, United Kingdom. You might have seen that most of the poets that we have in the syllabus are basically either they are English Indian poets or they are British poets. The American poets have not been given in our syllabus. So here's John Keats, the English very famous romantic poet from England. He died on 23rd February 1821 in Rome, Italy. Though he belonged to England, but he died in Italy, Rome. Okay, so you can see that he was born in 1795 and died in 1821, almost 25 and a half years. So this was his whole life, and he became so famous in this short span of his life that even today we are bound to read the poems. If ever English poetry is discussed, we the name of John Keats appears automatically. He is so famous, and the most famous writings of John Keats are odes actually. उन्होंने odes ही लिखे हैं. It is said that had he written nothing else than these odes, he would have been as famous as he is now. कहा जाता है कि अगर इन्होंने और कुछ नहीं भी लिखा होता, सिर्फ odes ही लिखे होते, तो वो तभी भी इतने ही famous होते जितने वो आज हैं. He had written almost 6 very famous odes. Okay. So let's see now. This is the stanza 1. Though I have given in this first slide, we have only 4 lines. The stanzas contain 10 lines in total. Each stanza contains 10 lines in total, and this is a very lengthy poem, so we'll not be discussing the whole poem in one go. एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. लेट्स से वी डिस्कस 2 stanzas in this first presentation and then we'll discuss the other stanzas later on. ठीक है, ऐसा करेंगे. This slide, in this slide, present slide that you are watching now, I have given only 4 lines कि आसानी से समझ आ जाए कि पोएम क्या है, दिखने में भी इजी रहे, बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा इसमें इंग्लिश थोड़ा सा ओल्ड इंग्लिश है यूज की हुई है. अगर हम उसको ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा. ठीक है, लेट्स गो थ्रू द पोएम. First, I'd like to read the first 4 lines. Take, my heart aches and a drowsy numbness pains my sense, as though of hemlock I had drunk, or emptied some dull opiate to the drains. 1 minute passed and leathwards had sunk. Okay, so now see, my heart aches. Ache means pain. Okay, ache here means pain. So the poet says that something is causing him pain. My heart pains and a drowsy numbness pains my sense. Now the line I had discussed earlier with you कि जो लाइन आगे कंटिन्यू करती रहती है, सेकेंड लाइन तक जाती रहती है, इसको रन ऑन लाइन बोलते हैं. मैं इसको यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ तो आप लोगों को ये दिमाग में बिल्कुल आ जाएगा. दीज आर कॉल्ड रन ऑन लाइन्स. ठीक है, तो यहाँ पे रन ऑन लाइन यूज करी हुई है. अ ड्राउजी नमनेस पेन्स माई सेंस, मेरे सेंसेस को एक ड्राउजी मीन्स स्लीपी सॉर्ट ऑफ. ओके, तो ड्राउजी का मतलब होता है स्लीपी. सो एक स्लीपी नमनेस क्या होती है, जैसे हमारे सुन्न हो जाता है, जहां फीलिंग नहीं आती. ठीक है, उसको नमनेस बोलते हैं. तो एक ड्राउजी सी स्लीपी सी नमनेस फील होती है मुझे अपने सेंसेस में. कैसे फील होती है? एज दो ऑफ हेमलक आई हैड ड्रंक.
ऐसा लगता है हेमलक इज अ पॉइजनस ट्री, एक पॉइजनस प्लांट होता है जिसको अगर हम खा लें, कंज्यूम कर लें, तो उससे थोड़ा सा हमें ड्राउजी सा फील होने लगता है, ठीक है। सो ये बोलते हैं एज दो ऑफ हेमलक आई हैड ड्रंक, ऐसा लगता है जैसे कि मैंने हेमलक ड्रंक पी लिया है, ड्रिंक कर लिया है, ठीक है। और एम्प्टीड सम डल ओपियट टू द ड्रेन्स, और या फिर मैंने खाली कर लिया है, एम्प्टी करना माने खाली करना। डल ओपिएट, ओपिएट आपको पता है ओपियम से बना है, ओपियम मीन्स अफीम, ठीक है। ओपिएट जो है यहाँ पे अफीम के लिए रेफर किया है। ओपियम मैंने, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ओपियम जो है वो निगल लिया हो, ड्रेन्स मतलब अपने गले में डाल लिया हो। 1 minute पास्ट एंड लीदी वर्ड्स हैड संक, 1 मिनट बीता और ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं लीदी वर्ड्स जा रहा हूं ना। व्हाट इज दिस लीदी? लीदी इज अ माइथोलॉजिकल रिवर, असली में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये एक माइथोलॉजिकल, माइथोलॉजिकल आपको पता होगा, माइथोलॉजिकल मीन्स जो स्टोरीज में एग्जिस्ट करती है, रियलिटी में नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अ माइथोलॉजिकल रिवर। क्या इसकी खासियत है, इसकी क्वालिटी क्या है? दैट इट्स नोन एज द रिवर ऑफ, आगे मैं लिख देती हूं इसी में ही, इट्स नोन एज द रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस, ठीक है। सो ही सेज कि ऐसा मुझे लग रहा है जैसे मैंने ओपियम पी लिया हो या हेमलक ले लिया हो, और मैं थोड़ी ही देर में आई एम सिंकिंग टूवर्ड्स लीदी, ठीक है। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस। अगर हम कभी भी ऐसा कुछ ले लें जिससे ड्राउजी हमें फील होने लगे, तो फिर नींद आने लग जाती है या हम सब कुछ पुराना भूलते चले जाते हैं, तो ऐसा ही पोएट को इस समय फील हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट आर द अदर लाइंस, आर द 6 लाइंस ऑफ दिस स्टैंजा। These are the lines. "'Tis not through envy of thy happy lot, but being too happy in thine happiness, that thou, light-winged dryad of the trees, in some melodious plot of beechen green and shadows numberless, singest of summer in full-throated ease." I can understand that just by reading these lines you won't be able to understand a thing. तो इसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, ताकि एक एक वर्ड आपकी समझ आ जाए, और फिर जब पोएम का एक्सप्लेनेशन कभी आपको करने को मिले तो आप उसे आसानी से कर पाए, ठीक है। नाउ सी, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। टिस, अब ये टिस किसके लिए लिखा है? शॉर्ट फॉर्म होता है। व्हाट इज दिस शॉर्ट? किसका शॉर्ट है ये? इट इज, इट इज, this means यहाँ पे it is, okay. So he says, it is not through envy of thy happy lot, I am not jealous. Envy here means jealous होना। jealous तो आपको पता है कि उसे जलन नहीं हो रही है, he is not jealous. I am not envious of your happiness, he says. दाई means, आपको मैंने पहली पोएम पढ़ाई थी एक, उसमें मैंने दाई का मतलब आपको बताया था। दाई का मतलब होता है your, ओके। सो आई एम नॉट जेलस ऑफ योर हैप्पीनेस, ही सेज। योर किसके लिए बोला है यहाँ पे? हु इज दिस दाई? किसको एड्रेस कर रहे हैं? वो नाइटिंगेल को एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ही इज एड्रेसिंग द नाइटिंगेल इन दिस पोएम, इसीलिए पोएम का नाम है ओड टू अ नाइटिंगेल। नाइटिंगेल को एड्रेस करके बोली गई है ये, तो ओड टू अ नाइटिंगेल इसीलिए। तो बोलते हैं कि आई एम नॉट जेलस ऑफ योर हैप्पीनेस। कैसे पता चल रहा है कि नाइटिंगेल हैप्पी है? बिकॉज इट इज सिंगिंग, वो गा रही है, ठीक है। सो वो बोलते हैं मेरे को जेलस नहीं फील हो रहा है, बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस, लेकिन मैं तुम्हारी हैप्पीनेस में आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी हैप्पी, ठीक है। इसीलिए वो हेमलक सा फील हो रहा है, इसीलिए ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ओपियम ले लिया होगा, नशे में हूं मैं, ऐसे लग रहा है। बिकॉज आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी हैप्पी इन योर हैप्पीनेस, ओके। दैट दाउ, दाउ मीन्स यू, हम ये वर्ड सारे पहले पिछली पोएम्स में डिस्कस कर चुके हैं। दैट यू, लाइट विंग्ड ड्रायड ऑफ द ट्रीज, ड्रायड एक्चुअली होते हैं, दे आर स्पिरिट्स ऑफ द ट्रीज, ठीक है। स्पिरिट्स होते हैं, मतलब ये भी कोई रियल नहीं होते हैं। ड्रायड्स जो हैं ये भी माइथोलॉजिकल क्रीचर्स हैं, असली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। स्पिरिट्स, सोल्स, आत्माएं, ठीक है। सो दैट दाउ, लाइट विंगड ड्रायड ऑफ द ट्रीज, सी, हल्के पंखों वाली तुम ट्रीज में स्पिरिट्स की तरह बैठी हुई हो। इन सम मेलोडियस प्लॉट, मेलोडियस प्लॉट मीन्स मेलोडियस सॉन्ग, हियर प्लॉट मीन्स सम सॉन्ग, ठीक है। तुम एक बहुत ही स्वीट सॉन्ग तुम गा रही हो ऑफ बीचन ग्रीन, कहां बैठी हो तुम? बीच इज अ ट्री एक्चुअली, ठीक है। बीच इज अ ट्री, उसके हरियाली में बैठी हुई हो, ऑफ सम बीचन ग्रीन एंड शैडोज नंबरलेस, जहां पे बहुत सारी शैडोज भी है। नेचुरली इट्स अ वेरी शेडी ट्री,
ठीक है, beechen is a very shady tree. So the nightingale is sitting on some tree, on some boughs of some tree, and there are so many shadows there. Singest of summer in full throated ease. Singest means you are singing. ठीक है, यहाँ singest means सिंगिंग। ये सब ओल्ड इंग्लिश है बच्चों, तो आप लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। बस इसका अगर हमें मीनिंग पता चल जाए क्या है तो हमें आसानी से मालूम चल जाता है हम क्या पढ़ रहे हैं। यू आर, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर सिंगिंग ऑफ समर। हियर नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। इंग्लैंड में जो समर है और इंडिया में जो समर है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस हियर। हमारे इंडिया में जो समर होती है दैट इज वेरी पेनफुल बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो जाता है। बट इन यूरोपियन कंट्रीज दे आर वेरी कोल्ड कंट्रीज, सो यहाँ पर समर जो है बहुत थोड़ा से पीरियड के लिए होती है एंड इट्स वेरी ब्राइट फ्यू मंथ्स ऑफ द ईयर। बहुत थोड़े से मंथ्स होते हैं समर के, तो दे आर वेरी ब्राइट एंड वेरी चीयरफुल। तो ठीक है, सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रोटेड ईज। नाउ यू हैव ओपनड योर थ्रोट टू द फुलेस्ट। ठीक है, बहुत आसानी से इजीली यू आर सिंगिंग विद योर फुल थ्रोट, ऐसे तुम गा रही हो। ठीक, नाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू लुक एट द ब्यूटी ऑफ द पोएम थ्रू अनदर एंगल। अब दूसरे एंगल से हम इस, मैंने अभी तो आपको मीनिंग बताया सिर्फ इन 10 लाइंस का। अब मैं चाहती हूं कि आपको इसके साथ साथ इस पोएम की ब्यूटी के बारे में बताएं। अब जब हम ब्यूटी के बारे में बात करते हैं तो हम राइम स्कीम की भी बात करते हैं, तो फिर हम अगर कोई फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं उन्हें पता होगा कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच आर एक्चुअली जिन्हें हम अलंकार बोलते हैं। ठीक है, कि इस पोएम में ब्यूटिफिकेशन के लिए पोएट ने क्या क्या यूज किया है उसको भी हम देखते चलते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से पिछली स्लाइड में जाना पड़ेगा। देखिए यहां पर अब हम फिर से देख लेते हैं। माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स माई सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक और एम्प्टीड सम डल ओपियट टू द ड्रेन्स 1 minute पास एंड लीदी वर्ड्स हैड संक। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट कि इसका राइम स्कीम क्या है। मैंने आपको बताया था पहले भी, हम पिछली पोएम्स जब किए थे तो मैंने बताया था सबसे पहली लाइन को हमें कुछ भी टेंशन नहीं लेनी, कुछ भी सोचना नहीं, हमने इसको लिख देना है ए। ठीक है, मान लो ये ए है, क्या ये वाली लाइन इससे राइम हो रही है? नहीं हो रही है, तो हमें इसको लिख देना है बी। ठीक है, नाउ पेन्स एंड ड्रेन्स राइम कर रहा है, हम इसे फिर से लिख देंगे ए। और ड्रंक और संक राइम कर रहा है, हम इसे लिख देंगे बी। सो फर्स्ट 4 लाइंस की राइम स्कीम हमें यहां पे मिल गई। क्या है? ए बी। ये पहली 4 लाइंस का राइम स्कीम है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अगली लाइंस को। लॉट। ठीक है, अब हम पीछे एक बार देख लेते हैं, क्या यहां पर किसी से राइम हो रहा है? नहीं, ए बी तो राइम नहीं हो रहा है। इधर आ रहा है लॉट। ठीक है, तो हम इसको मान लो कर लेते हैं सी। ठीक है, ये इससे राइम नहीं हो रहा है, हम इसे यहां पे लिख देंगे डी। लॉट, हैप्पीनेस बिल्कुल राइम नहीं हो रहा। ट्रीज, इन दोनों से राइम नहीं हो रहा, हमें फिर से यहां पे एक और नया लेटर लिखना पड़ेगा ई। ठीक, अब प्लॉट, क्या किसी से राइम हो रहा है? लॉट एंड प्लॉट राइम हो रहा है, हम इसे लिखेंगे सी। हैप्पीनेस, नंबरलेस राइम हो रहा है, हम इसे लिखेंगे डी। ट्रीज एंड ईज राइम हो रहा है, हम इसे लिखेंगे ई। नाउ सी, अब हमें बाकी 6 लाइन का भी मिल गया राइम स्कीम। क्या है? इट इज सी डी ई। ठीक हो गया, ये सारी राइम स्कीम हो गई। पिछले स्लाइड में एक बार और जाके देखते हैं, यहां क्या था? ए बी। तो अब मैं यहां पे पूरी 10 लाइंस का लिख देती हूं। ए बी सी डी ई, यानी कि इस पोएम की राइम स्कीम ये है। फर्स्ट एंड थर्ड लाइंस आर राइमिंग, सेकंड एंड फोर्थ लाइंस आर राइमिंग। ऐसे ही ये कौन सी है? फिफ्थ, और ये कौन सी है? एट्थ। फिफ्थ और एट्थ राइम होती है, सिक्स्थ और नाइन्थ राइम होती है, और सेवेंथ और 10th राइम होती है। ये इसकी राइम स्कीम मानी जाएगी। ठीक, अब फिर से पिछली साइड में जाते हैं, देखते हैं क्या कोई फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, तो हम उसे भी समझते चलते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर, माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स माई सेंस एज दो ऑफ हेमलक आई हैड ड्रंक, एज दो ऑफ हेमलक आई हैड ड्रंक। देखो यहां पर आ गया एज। मैंने आपको एक बार बताया था कि जहां पर एज, सच एज, लाइक ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, जस्ट ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, तो वहां पे एक फिगर ऑफ स्पीच यूज कही जाती है, उसे बोलते हैं सिमिली। अब यहां पे सिमिली माने 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन किया गया है। तो एक तो यहां पे हमें समझ आ रहा है हेमलक। ठीक है, और दूसरा बोलते हैं क्या, किसको कंपेयर किया है? माई सेंस को। अपनी सेंस को कैसे कंपेयर किया है उन्होंने? जैसे कि उन्होंने हेमलक पी लिया हो।
ठीक है, तो सेंस का कंपैरिजन, क्योंकि सेंस बहुत ड्राउजी हो रही है इसलिए उसका कंपैरिजन हेमलक से किया है, तो यहां पे सिमिली यूज हुआ है। मैंने आपको पिछली पोएम्स जब डिस्कस की थी तो मैंने आपको बताया था सिमिली इज अ टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। मैं इसे दोबारा लिख देती हूं यहां पर, ताकि जिन बच्चों ने पिछली स्लाइड्स ना देखी हैं वो भी इनको समझ जाएं और वो पिछली स्लाइड्स को भी ध्यान से देख सकें। फिगर ऑफ स्पीच होती है, और फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं, क्या मतलब होता है फिगर ऑफ स्पीच का? हिंदी में मुझे आप लोग माफ करेंगे, बहुत अच्छी राइटिंग नहीं बना पाती हूँ क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे लिए इसमें लिखना, राइटिंग पैड में लिख करके करना होता है, तो समझ आ रहा होगा आपकी, ये अलंकार है, ठीक है। सो दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच, ठीक। यहां पर एक हमने ढूंढ लिया ब्यूटी ऑफ द पोएम, ठीक। और emptied some dull opiate to the drains, 1 minute passed and leafy words had sung। अब यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं लग रहा है। लीदी वर्ड्स का मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि वो एक माइथोलॉजिकल रिवर है, विच इज नोन एज रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस, ठीक। चलो, इस इन 4 लाइंस में हमने देख लिया। आगे देखते हैं अब यहाँ पे, इट इज नॉट थ्रू एनवी ऑफ द हैप्पी लॉट बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस दैट दाउ लाइट विंग्ड ड्राइड। अब हम यहाँ आ जाते हैं, ठीक। यहाँ पे दाऊ मैंने आपको बताया था यू, और ये यू कौन है, किसको बोला गया यहाँ पे यू, किसके लिए एड्रेस किया है उन्होंने? नाइटिंगेल को बोला है, ठीक है, कि तुम जो हो, क्या किससे कंपेयर किया है नाइटिंगेल को बोला है यू आर लाइक अ लाइट विंग्ड ड्रायड, ठीक। तो ये यू को लाइट विंग्ड ड्राइड से कंपेयर तो किया है, लेकिन लाइक, जस्ट एज, सच एज ऐसे वर्ड्स यूज नहीं किए हैं। जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाए और जस्ट एज, सच एज, लाइक ऐसे वर्ड्स यूज ना किए जाएं, तो वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच होता है उसे बोलते हैं मेटाफर। ये भी एक बार पहले हमारी पोएम्स में आया हुआ है, यूज हुआ है, मैं ये दोबारा आपको बता रही हूं, आप लोग याद रखिएगा इसे। इसे बोलते हैं मेटाफर। यू को कंपेयर किया है लाइट विंग्ड ड्राइड से, लेकिन कंपेयर करने में बोला है तुम उसके जैसे हो नहीं बोला है, बोला है कि तुम वही हो, ठीक है। उसको उसी का रूप दे दिया है, इसे रूपक अलंकार बोलते हैं हिंदी में, ठीक, मेटाफर को। तो उसी का रूप दे दिया गया है। तो ये एक हमने फिगर ऑफ स्पीच यहां पे ढूंढ ली। Of the trees in some melodious plot of beechen green and shadows numberless, singest of summer in full throated ease। बस यहां पर एक ही फिगर ऑफ स्पीच है, यानी कि इस फर्स्ट स्टैंजा में दो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुई हैं, आगे सिमिली यूज हुआ है और यहां पर मेटाफर हुआ है। बाकी जो मीनिंग्स हैं, जो अगर कुछ हमें नहीं समझ आ रहे थे, जैसे कि लीदी वर्ड्स में लीदी नहीं समझ आ रहा था, तो हमने देख लिया कि लीदी मतलब होता है रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस, और ये माइथोलॉजिकल रिवर है, सचमुच की रिवर नहीं है, ग्रीक माइथोलॉजीज में यूज होता है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो यहाँ पे अब इसका मीनिंग मैंने जानबूझ के ये स्लाइड यहाँ पे ऐड करी है, बिकॉज आई वांट यू ऑल टू गो थ्रू द स्लाइड्स, एंड इफ there's बाय चांस समथिंग आई हैव लेफ्ट, you may be able to understand it from here, this slide, इससे आपकी समझ आ जाएगा। I'll explain this also, ठीक। My heart is in pain and my body feels numb and tired। He says my heart, जो लाइन का मीनिंग है वो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग यहाँ पे बता रहे हैं कि my heart is in pain, the poet says that he is in pain and his body also feels numb and he is also feeling very tired, okay। I feel like I have drunk from the poisonous hemlock plant। I told you that hemlock is a poisonous plant, or like I have just taken some kind of opiate drug, opium, some kind of drug which makes you feel sleepy, ठीक है, and fallen into the waters of Lethe, the river of the ancient Greek mythological underworld that makes you forget everything। I told you that it's known as the river of forgetfulness, ठीक है, रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस बोलते हैं लीदी को। नाइटिंगेल, नाउ ही एड्रेसेस द नाइटिंगेल, नाइटिंगेल आई एम नॉट जेलस ऑफ हाउ हैप्पी यू साउंड। जेलस नहीं हूं मैं, आई फील लाइक दिस बिकॉज आई एम टू हैप्पी टू हियर यू सिंग सो फ्रीली एंड ब्यूटिफुली। यू आर सिंगिंग सो फ्रीली एंड ब्यूटिफुली दैट आई फील हैप्पी टू हियर यू, ठीक है। यू आर लाइक अ ड्रायड, कैसे हो तुम? अ मिथिकल ट्री स्पिरिट, मैंने आपको बताया था ट्री में रहने वाला स्पिरिट को ड्रायड बोलते हैं, दैट अगेन इट इज मिथिकल, माइथोलॉजीज में ही एग्जिस्ट करते हैं ये ड्रायड्स। इन योर पैच ऑफ ओवरग्रोन ग्रीनरी, आई टोल्ड यू इट्स बीचन ग्रीन ओवर देयर, बीच इज अ प्लांट, ओके, सो बीचन इज अ प्लांट देयर, ओवरग्रोन ग्रीनरी में तुम हो, वहां पे शैडोज भी हैं, यू आर सिंगिंग द समर सॉन्ग विद ऑल योर माइट, विद फुल थ्रोटेड ईज। यहाँ पे ऑल योर माइट जो है वहां पे पोएम में क्या लिखा हुआ है पोएट ने? फुल थ्रोटेड ईज। आप समर के गाने गा रही हो इजीली अपने खुले गले से,
तुम गा रही हो, एंड यू लुक सो हैप्पी टू मी, एंड आई डोंट फील जेलस ऑफ यू, आई एम फीलिंग happy in your happiness. This is the meaning of the first stanza. Let's move forward to the second stanza. See, oh, for a draught of vintage that hath been cooled a long age in the deep delved earth, tasting of flora and the country green, dance and provencal song and sunburnt mirth. Now these are the 4 lines. Okay? Now he says, oh, for a draught full of vintage. Draught means one whole sip. ठीक है, एक पूरा सिप मुझे मिल जाए विंटेज का. विंटेज इज अ लिकर. विंटेज किसको कहते हैं? एक ऐसी लिकर होती है जो बहुत समय तक सेलर्स में रखी गई हो, मतलब बहुत पुरानी लिकर को विंटेज कहा जाता है. ठीक है, सो ही सेज, काश कि मुझे ऐसा होता कि मुझे एक विंटेज की एक ड्रॉट फुल मिल जाता. ठीक है, एक पूरा बड़ा घूंट मुझे विंटेज वाइन का मिल जाता. दैट हैड बीन कूल्ड लॉन्ग एज इन द डीप डेल्ड अर्थ. मैंने बताया था आपको, सेलर्स में, सेलर्स क्या होते हैं? जिनमें कि उनको फर्मेंट करने के लिए, वाइन को फर्मेंट किया जाता है, तो वाइन को फर्मेंट करने के लिए जिन कंटेनर्स में रखा जाता है, दे आर नोन एज सेलर्स. तो वो बोलते हैं कि उस ऐसी विंटेज वाइन चाहिए थी मुझे अभी, जो कि काफी लंबे समय से, कूल्ड अ लॉन्ग एज इन डीप डेल्व्ड अर्थ, उन्हें पहले जमीन के अंदर गाड़ के रख दिया जाता था, तो कि अर्थ में बहुत लंबे समय तक जो रही हो, ऐसी विंटेज वाइन मुझे चाहिए. Tasting of flora, because it has been kept under the ground, so it tastes of flora. Flora means the plants and trees around in a forest. ठीक है, जो भी फ्लोरा, जो भी पेड़ पौधे आसपास होते हैं, उसको फ्लोरा बोला जाता है. सो टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन. कहा कैसी आवाज, कैसी उसकी खुशबू आएगी? जैसे कि जंगल में जो हरी भरी हरा भरा जंगल होता है, जहां गांव होते हैं. कंट्री हियर मींस विलेज. ठीक है, विलेज में जैसे पेड़ पौधे हैं, जितना भी वहां पे फॉरेस्ट है, उसका वहां उस विंटेज वाइन में मुझे टेस्ट आए, ऐसा मुझे वाइन इस समय चाहिए. डांस एंड प्रोवेंकल सॉन्ग एंड सनबर्न मर्थ. उसमें से डांस का भी पता चले, मतलब ऐसी विंटेज वाइन हो जो कि मुझे कहीं रिफ्लेक्शन दे दे, कहीं मुझे ऐसी कुछ याद दिला दे. ठीक है, कहीं मैं ऐसी इस ध्यान में चला जाऊं कि मानो मैं किसी कंट्री ग्रीन में हूं. ठीक है, उसकी स्मेल मुझे फील हो. प्रोवेंकल हियर, नाउ प्रोवेंस इज अ स्मॉल प्लेस इन फ्रांस. प्रोवेंस एक एरिया है फ्रांस का. ठीक है, प्रोवेंस इज इन फ्रांस. कि फ्रेंच वो सॉन्ग की भी मुझे याद दिला दे. और सनबर्न मर्थ, मर्थ मीन्स होता है हैप्पीनेस. ठीक है, जो हैप्पी लॉट, जो लोग वहां पे हैप्पीली ये सब काम कर रहे हैं, कि वो फील्ड्स में भी अपने जा रहे हैं, वाइन भी वो लोग अपने आप ही बना ले रहे हैं, उस सब का मुझे याद आ जाए इस वाइन को पी करके, ऐसा मुझे अभी जरूरत है. द पोएट इज सेइंग दिस. ठीक है, प्रोवेंस इज अ प्लेस इन फ्रांस. Now see the next 6 lines of the poem. Oh, for a beaker full of warm south. Now warm south. North, as you all know, is a cold place. है ना? The temperature is low down, low up there. And in south, it is warmer as compared to the north. So a beaker full of, beaker, you know all beaker, जिसमें आगे से थोड़ा सा बीक जैसी होती है, ऐसा ग्लास को beaker बोलते हैं. Here beaker means a glass full of. ठीक है, बीकर हियर मींस अ ग्लास फुल ऑफ वार्म साउथ. वार्म साउथ किसको रेफर किया है यहाँ पे? फिर से लिकर को रेफर किया है. ठीक है, कि साउथ की कोई ऐसी वार्म सी लिकर मुझे मिल जाए. फुल ऑफ द ट्रू द ब्लशफुल हिपोक्रिन. सचमुच में जो कि भरी हुई हो, किससे? द ब्लशफुल हिपोक्रिन. नाउ हिपोक्रिन इज अ फाउंटेन, और ये भी माइथोलॉजिकल ही है. एक ऐसा फाउंटेन जो कि नए पोएट्स के लिए इंस्पिरेशन का काम करता है. इट इज अ माइथोलॉजिकल फाउंटेन. फाउंटेन आपको पता है, फवारा. एक ऐसा माइथोलॉजिकल फवारा है म्यूजेस का, जो पोएट्स का गॉड है, उसका फवारा है. ऐसा माना जाता है कि ये इसी के यही इंस्पायर करता है नए पोएट्स को पोएम्स लिखने के लिए. ठीक है, तो वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा कुछ मिल जाए जिससे कि ये ब्लशफुल, ब्लश करता हुआ, है ना, कि नया पोएट है तो थोड़ा सा झिझक है उसके अंदर. सो हिपोक्रिन का मुझे एक स्वाद मिल जाए, ग्लास भर के मुझे वार्म साउथ लिकर, जो कि हिपोक्रिन से भरी हुई हो, इंस्पिरेशन से भरी हुई हो.
with beaded bubbles winking at the brim. beaded, see bead माने क्या होती हैं, मनके को बोलते हैं बीड्स, कोई भी दाने, मोती हो या तुलसी की दाने हो, जो भी, उनको बीड बोलते हैं, ठीक है। विद बीडेड बबल्स, कैसे बबल्स हो, गोल गोल, क्योंकि गोल होते हैं ना, इसलिए पोएट ने उसे कंपेयर किया बीड से, ठीक है। विंकिंग एट द ब्रिम, बहुत सुंदर लाइन है ये वाली, विंकिंग एट द ब्रिम। विंक माने क्या होता है, वैसे विंक माने होता है आंख झपकना, लेकिन ब्रिम माने होता है द टॉप एज ऑफ द ग्लास, ग्लास का जो ऊपर का सबसे ऊपरी एज होता है उसे ब्रिम बोला जाता है। तो वहां पे जो बबल्स हैं आ आके विंक कर रहे हैं, और बबल्स का विंक करना मतलब क्या, वो आ आके बर्स्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। यहां पे विंकिंग का मतलब हो गया बर्स्टिंग, जो बबल्स ऊपर आके बर्स्ट हो जा रहे हैं उसके लिए लिखा विंकिंग एट द ब्रिम। ब्रिम माने ऊपर की एज ग्लास की, मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी। एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ, और वो वाइन को पीने की वजह से माउथ कैसा हो जाएगा, पर्पल स्टेन हो जाएगा। स्टेन मीन्स उसमें दाग लग जाएगा, मुंह में, मुंह पर्पल कलर का हो जाएगा। एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ दैट आई माइट ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, ऐसा मेरा मन हो रहा है कि ये वार्म साउथ को मैं पी लूं, है ना, इस लिकर को मैं पी सकूं, एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन एंड विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम, और इस दुनिया को मैं बिल्कुल कोई किसी को पता ही ना चले, एंड आई वुड बी एबल टू लीव दिस वर्ल्ड, कहां जाना चाहते हैं, एंड विद दी, तुम्हारे साथ, दी मीन्स यू, है ना, विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम, इस डिम फॉरेस्ट के अंदर मैं भी तुम्हारे साथ गुम हो जाऊं, चला जाऊं। सो ही विशेस टू लीव द वर्ल्ड, ठीक है। हियर देर इज अ वेरी सटल नोट ऑफ कीट्स, कीट्स थोड़ी सी नेगेटिव उनकी कैपेबिलिटी थी, ही ऑलवेज विश्ड फॉर डेथ, उनमें पता नहीं, ये उनकी पोएम्स में हर जगह आपको ये नजर आएगा, ही ऑलवेज सीक्रेटली, ही ऑलवेज विश्ड फॉर डेथ। सो हियर फेडिंग अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम इज अ सीक्रेट विश ऑफ कीट्स टू डाई, ठीक है। डेथ के बारे में ही यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं यहाँ इस दुनिया से चला जाना चाहता हूँ। ही इज सो फ्रेटेड, ही इज सो डिस्कस्टेड विद द वर्ल्ड दैट ही वांट्स टू लीव इट बाय लिसनिंग टू द सॉन्ग ऑफ द बर्ड ऑफ द नाइटिंगेल, ओके। This was the meaning of the poem. Let's look at the beauty of the poem with the rhyme scheme and everything, okay. सी दिस वॉज द स्टैंजा, जैसे मैंने आपको बताया राइम स्कीम तो अब वही रहेगी, ए बी सी डी, बीन ग्रीन अर्थ मर्थ, है ना, तो ए बी यहाँ पे हो ही गया, तो अब इसको दोबारा हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ब्यूटी देख लेते हैं, ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट हैड बीन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेल्ट अर्थ, टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन, डांस एंड प्रोवेंकल सॉन्ग एंड सनबर्न्ड मर्थ। नो सच, मैं जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच आपको बता रही हूं, वैसे तो फिगर्स ऑफ स्पीच अगर हम ढूंढेंगे तो बहुत सारे हमें ऐसे मिल जाएंगे, बट आई वुड बी टेलिंग यू ओनली दोज फिगर्स ऑफ स्पीच जो कि हम ज्यादातर यूज करते हैं, जो कॉमन यूज होते हैं, मैं उनके बारे में यहाँ पे बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। सो अगली 6 लाइंस में चले जाते हैं। ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ, फुल ऑफ, नाउ सी यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं, वार्म साउथ लिकर के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर कंपेयर किया है लिकर को वार्म साउथ से, तो फिर से मेटाफर यूज हुआ है, ठीक है। फुल ऑफ द ट्रू ब्लशफुल हिपोक्रेन, ये तो ठीक है, हिपोक्रेन मैंने आपको बताया, फाउंटेन ऑफ म्यूजेस को हिपोक्रेन बोलते हैं। विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम, बहुत सुंदर ये लाइन है, एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको पूरा किया था। इसमें एक बहुत सुंदर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, हिंदी में हम जिसे अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। आपको ध्यान होगा जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है, ऐसे ही अगर एक ही साउंड की बार बार आवृत्ति अंग्रेजी में भी होती है तो वहां पर भी अनुप्रास अलंकार होता है, और अनुप्रास अलंकार को हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिटरेशन। तो यहां पर बीडेड बबल्स में जो है पोएट ने एलिटरेशन यूज किया है, ठीक है। एलिटरेशन मतलब मैंने आपको बताया अनुप्रास अलंकार, ठीक है, तो एलिटरेशन यूज है। विंकिंग एट द ब्रिम, बहुत सुंदर कंपैरिजन है, हालांकि यहाँ पे बहुत मतलब कोई फिगर ऑफ स्पीच एज सच यूज नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर कंपैरिजन है। विंकिंग, बर्स्टिंग को विंकिंग बोला है उन्होंने, ठीक है। एंड पर्पल स्टेन माउथ, और पर्पल स्टेन हुआ हुआ माउथ है, दैट आई माइट ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन एंड विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम। आप देख लो यहाँ पे फिर से, अगर हम राइम स्कीम देखना चाहें तो साउथ सी, हिपोक्रेन डी, ब्रिम ई, फिर साउथ और माउथ सी सी, है ना, हिपोक्रेन और अनसीन फिर से डी डी, और ब्रिम और डिम ई ई, तो सी डी ई इसका भी राइम स्कीम हो गया, ठीक है। Let's look at the explanation of the second stanza. I wish I had some vintage wine. मैंने आपको explain किया था, vintage means old wine, ठीक है। vintage का meaning होता है
old wine. I wish I had some vintage wine that has been stored for years in the deep in the belly of the earth. Wine that tastes of, कैसा taste चाहिए? Flora, flowers and the countryside of dancing, folk singing and happy सनशाइन. कंट्री साइड कौन सा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था? फ्रांस के उस जगह का नाम जिसका नाम है प्रोवेंस, उसका एग्जाम्पल दिया था. इफ आई कुड ड्रिंक अ बॉटल ऑफ वाइन दैट वुड ट्रांसपोर्ट मी टू वार्मर सदर्न लैंड्स, वन फुल ऑफ वाटर फ्रॉम द मिथिकल हिपोक्रिन स्प्रिंग, मैंने आपको बताया था फाउंटेन है हिपोक्रिन, दैट ग्रांट्स पोएटिक इंस्पिरेशन, मैंने आपको ये भी बताया था नए पोएट्स के लिए वो इंस्पिरेशन का काम करता है. द बबल्स वुड प्ले ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लास, मैंने आपको बताया था सर्फेस के लिए जो वर्ड पोएम में यूज किया गया है वो क्या है? ब्रिम यूज किया गया है ना, ब्रिम, ठीक है, ऑफ द ब्रिम ऑफ द ग्लास, एंड इन माई वाइन स्टेन्ड माउथ, पर्पल स्टेन, जिसको वाइन के लिए यहां पे लिखा है पर्पल स्टेन माउथ, I could get drunk, forget the world, and escape with you, Nightingale, away into the dark forest. He wants to escape with the Nightingale to the dark forest. Actually, this dark forest is not dark forest, it is death. He wants to escape life. Secret wish of Keats always has been death. Okay, so this is the explanation of the first two stanzas. I hope आप लोगों को ये सब समझ आया होगा. Though this poem is a bit difficult only, but with proper explanation and proper understanding, अगर आप लोगों ने पूरा ध्यान दिया होगा, ध्यान से सुनेंगे आप, अगर एक बार में समझ नहीं आया आप रिवाइज कीजिएगा वीडियो को और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा. बिकॉज अब ये एग्जाम मतलब आपके सिलेबस में जब आ ही गई है तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट एनीवेज, है ना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी. और ब्यूटी ऑफ द पोएम को भी अगर हम देखें तो सुंदर तो है ही पोएम, थोड़ा सा वर्ड्स टिपिकल है, उसको हम समझ लें तो हमको ब्यूटी भी समझ आ जाती है, उसकी राइम स्कीम भी समझ आ जाती है और मीनिंग भी समझ आ जाता है. आई होप you understood the poem, these two stanzas of the poem. We'll be dealing with the rest of the stanzas in later presentations. Till then, goodbye and take care all of you.